So if you're preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos, which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise professor questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also, we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIIB. Now let us have a look at the returns, inspection and winding up. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. तो जो भी कोई बैंकिंग कंपनीज है उनको यहां पर अपने एनुअल अकाउंट यानी कि जो बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनकी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है. चाहे वो फॉरेन बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो पीएसबी है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको इन स्टेटमेंट्स को बनाना ही पड़ेगा. एंड ये जो अकाउंट स्टेटमेंट्स बनती हैं एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये बनेगा सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से. जो यहां पर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये यहां पर हर एक कैलेंडर ईयर के एंड पर या फिर किसी पर्टिकुलर डेट से 12 महीने का समय निकलने के बाद, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उनके ऑफिशियल गजट में, ऐसी डेट के ऊपर आपको अपने स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ेगा. जैसे कि अब यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी तैयार की जाती है वो एज ऑन 31 मार्च यानी कि हमारे फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसके हिसाब से आपको ये फाइनेंशियल ईयर्स को बनाना, आपको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है, जिसमें बैलेंस शीट शामिल रहेगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल रहेगा. ओके, एंड फर्दर एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो फॉर्म ए है उसमें फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट का, एंड फॉर्म बी जो है उसमें फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. फॉर्म के नंबर याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो फॉर्म ए जो है शेड्यूल 3 का सेक्शन 29 के अंदर वो है बैलेंस शीट से रिलेटेड, एंड फॉर्म बी जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड. एंड यहां पर इन फॉर्म्स को शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया गया है, एंड फर्दर ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो तो चीजें बाकी एक्ट्स के साथ कंसिस्टेंट है उन सभी को तो फॉलो करना ही करना है. इवन अगर कोई इनकंसिस्टेंट भी है, मान लीजिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा कुछ कह दिया एंड किसी और एक्ट में कुछ और कह दिया, तो यहां पर फिर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को माना जाएगा, क्योंकि ये इसका जो इफेक्ट है दैट इज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. ओके, एंड इन फॉर्मेट्स को, जो फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर मॉडिफाई किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाएगी. दैट इज रिलेटेड टू इट. अब यहां पर देखिएगा, अब कंपनीज एक्ट के अंदर भी कहा गया है कि आपको जो बैलेंस शीट है एंड फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करनी है, एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपको ये स्टेटमेंट्स को भेजना पड़ता है. ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. एंड इसी तरह से यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी कहा गया है. तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला पर्सन कहते हैं कि यहां पर आप आरबीआई को तो स्टेटमेंट्स भेजेंगे, साथ ही साथ आप ये स्टेटमेंट्स आरओसी को भी भेजिए. यानी कि अगर कोई प्राइवेट बैंक है जिसको यहां पर कंपनीज एक्ट के अंडर यहां पर कंस्टिट्यूट किया गया है, अगर प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, तो वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो स्टेटमेंट्स भेजेंगे, साथ ही साथ यहां पर जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट में उसके तहत वो आरओसी को भी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी यहां पर इन स्टेटमेंट्स को भेजेंगे अलोंग विद द लफार, दैट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. यानी कि जो भी ये आप स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं,
जो भी ये स्टेटमेंट्स आपको एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स तैयार करनी पड़ती हैं एज पर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेटमेंट आपको किस सेक्शन के हिसाब से तैयार करनी है? सेक्शन 29 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से तैयार करनी है। उसमें आपको फॉर्म ए दिया गया है जो कि बैलेंस शीट से रिलेट करता है, फॉर्म बी दिया गया है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करता है। एंड फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन भी कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देगी, ऑफिशियल गजट में बता देगी। एंड इन जो आप स्टेटमेंट्स को जमा करवाएंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर से, जो कि आपको यहां पर ड्यूली ऑथराइज्ड ऑडिटर होगा, उससे आप इनकी ऑडिटिंग भी करवाएंगे, इन स्टेटमेंट्स की ऑडिटिंग भी करवाएंगे, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। एंड फर्दर इन स्टेटमेंट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाना होगा। दैट इज अ प्रोसीजर। एंड लेट अस फर्दर रिलेट विद दिस, दैट इज रिलेटेड टू द साइनिंग अथॉरिटी कि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन कौन करेगा। अगर तो हम उन कंपनीज की बात करते हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, यानी कि वो बैंकिंग कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उसके केस में यहां पर, उसके केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर है या फिर जो मैनेजर है वो साइन करेंगे। एंड साथ के साथ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी विल बी साइनिंग दीज पर्टिकुलर दीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहां पर जो एक प्रिंसिपल ऑफिसर है एंड जो मैनेजर है वो साइन करेंगे, एंड साथ में कम से कम 3 डायरेक्टर्स जो है वो साइन करेंगे। अगर डायरेक्टर्स का नंबर जो है वो 3 से कम है, उसके केस में जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सभी यहां पर साइन करेंगे इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। एंड अगर हम फॉरेन बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो मैनेजिंग एजेंट है, वो यहां पर साइन करेंगे इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के ऊपर। देन इट इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन ऑफ accounts and balance sheet. It is related to publication of accounts and balance sheet. The accounts and balance sheet must be made published in a newspaper. तो जो भी आपकी ये बैलेंस शीट होती है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपको इसे 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर, यानी कि जिस पीरियड से ये जो स्टेटमेंट्स है ये रिलेट करती हैं, जैसे मान लीजिए हम पिछले साल की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक एक आपका फाइनेंशियल ईयर था, जिसके लिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट को तैयार किया। आप इन बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स को तैयार करवाएंगे एंड फिर जैसे आपको साइन करवाने के लिए कहा गया, अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है तो यहां पर आप प्रिंसिपल ऑफिसर एंड जो 3 डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा साइन करवाएंगे। अगर फॉरेन बैंकिंग कंपनी है तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर जो मैनेजर है उनके आप साइन करवाएंगे। एंड फर्दर आपको इसे न्यूज़पेपर में 6 महीने के अंदर अंदर भी पब्लिसाइज करना पड़ेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको इन्हें न्यूज़पेपर में पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा। ओके, दैट इज particularly related to it. After that, it is related with the submission to Reserve Bank of India. As I already told you कि जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं उन्हें आपको सबमिट भी करना पड़ता है, लेकिन कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 31 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। जो स्टेटमेंट सेक्शन 29 के हिसाब से मैंने प्रिपेयर की, पहले तो उनको मैं ऑडिट करवाऊंगा बाय द ऑथराइज्ड ऑडिटर, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन होगा। एंड फर्दर उसके बाद मैं यहां पर इन स्टेटमेंट्स को जमा करवाता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 31/3/2021 के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ये स्टेटमेंट्स आरबीआई के पास 3 कॉपीज, कम से कम इनकी 3 कॉपीज अलोंग विद द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट यहां पर आरबीआई के पास जमा होंगी। एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ऐसा टाइम पीरियड जो है उसे 3 महीने से आगे फर्दर 3 महीने बढ़ा सकता है, यानी कि वो आरबीआई की पावर है। एज सच आपको 3 महीने के अंदर जमा करवानी है, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है तो उसके केस में आप यहां पर 3 महीने फर्दर और यहां पर डिले आपको मिल सकता है। Okay, then further related to furnishing of accounts statements to registrar. तो as I told you कि जो भी आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो रूल्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं, वो तो आप फॉलो करेंगे। जो इनकंसिस्टेंट है उनके केस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो यहां पर दायरा है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि ये इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। बट स्टिल, क्योंकि जो बैंकिंग कंपनी है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, प्राइवेट बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं, तो उसे यहां पर रजिस्टर किसके अंदर किया गया? उसे यहां पर रजिस्टर किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो यहां पर कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी उसके ऊपर लागू होते हैं। तो यहां पर जो आरओसी के पास है, यानी कि रजिस्ट्रार के पास भी आपको अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट को फर्दर जमा करवाना होगा। सो इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी बैंकिंग कंपनी हैज फर्निश्ड द अकाउंट्स balance sheet in accordance with the provisions of section 31 banking regulation act, it should at the same time furnishing to the registrar 3 copies of the accounts and balance sheet and the auditor report. तो यहां पर आपको साथ के साथ बैंकिंग कंपनी को जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो किसके पास जमा करवानी होंगी? ऑफिस जो आपके पास रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनके पास भी जमा करवानी होंगी। इज इट क्लियर?
After that, it is related to display of balance sheet and accounts by कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि फॉरेन बैंक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वो बैंकिंग कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि उनका हेडक्वार्टर बाहर है, ऑपरेशंस यहां पर इंडिया में भी चल रहे हैं। तो उसके केस में क्या रहेगा, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टू डिस्प्ले इन अ कंस्पिक्यूअस प्लेस, यानी कि जो कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है उनके हेड ऑफिस में, उनकी ब्रांचेस में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस में भी एंड जो दूसरी ब्रांचेस हैं उनमें भी उनको यहां पर अपनी जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी, लास्ट ऑडिटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसकी फोटो कॉपी, उसकी जो यहां पर कॉपी होगी, ऑडिटेड कॉपी होगी, वो इनको अपने प्रिंसिपल ऑफिस में एक ऐसी प्लेस पर रखनी पड़ेगी जो कि इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पर से वो विजिबल हो। एंड फर्दर ये जो डिस्प्ले करना है, ये जो डिस्प्ले इनको कॉपीज को करना है, ये अगस्त के एक वीक के बीच तक हो जाना चाहिए। यानी कि अगर हम यहां पर 1 अप्रैल, अगर हम 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक की बात कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो 30 यहां पर जब अगस्त वीक शुरू हो जाएगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर, यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये अपने जो भी ये बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनको ये अपने प्रिंसिपल ऑफिस में किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर डिस्प्ले कर दे। ओके, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 33 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, after that the account and balance sheet have to be kept displayed until replaced by a copy of the subsequent balance sheet and profit and loss account, यानी कि वो आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहीं पर लगा रहेगा, अगले साल जब नई बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगी तभी वो रिप्लेस होगी, अदरवाइज वो वहीं पर लगी रहेगी। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दैट इज टू बी ऑडिटेड बाय अ ड्यूली क्वालिफाइड ऑडिटर, ठीक है। एंड फर्दर स्पेशल ऑडिट भी हो सकती है, स्पेशल ऑडिट भी हो सकती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी बैंकिंग कंपनी की स्पेशल ऑडिट नेसेसरी है, तो उसके केस में अगर ऐसी जो स्पेशल ऑडिट करवाई जानी है वो बैंकिंग पॉलिसी के हित में है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर वो डिपॉजिटर्स के हित में है, तो उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो ऐसी स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है। इसके केस में जो यहां पर बैंकिंग कंपनी है, यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज एम्पावर्ड कि ये ऑर्डर दे सकती है कि ऐसी स्पेशल ऑडिट बैंकिंग कंपनी की यहां पर क्या की जाए, यहां पर बैंकिंग कंपनी की स्पेशल ऑडिट की जाए। इज इट क्लियर? एंड फर्दर आरबीआई जो है वो यहां पर इस पर्पस के लिए डायरेक्टली भी अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर को, यानी कि अपनी तरफ से किसी ऑडिटर को डायरेक्टली अपॉइंट कर देगी, या फिर मे डायरेक्ट द ऑडिटर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर है उसे भी फर्दर डायरेक्ट कर सकती है ऐसी स्पेशल ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस आर बाइंडिंग ऑन द ऑडिटर। अब एक बार अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसी बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को यहां पर डायरेक्ट कर दिया, दैट वुड बी अ बाइंडिंग ऑन द ऑडिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी, एंड ऑडिटर हैज टू मेक सच रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऑडिट की रिपोर्ट जाएगी, एंड फर्दर एक जो रिपोर्ट की कॉपी है वो यहां पर बैंकिंग कंपनी के पास जाएगी। इज इट क्लियर? तो अगर आरबीआई स्पेशल ऑडिट करवाती है तो स्पेशल ऑडिट कौन कराएगा? आरबीआई स्पेशल ऑडिट करवा सकती है अगर आरबीआई को लगता है कि जो यहां पर कंपनी का कामकाज है वो सही नहीं चल रहा, तो पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में या फिर डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट में आरबीआई इज एम्पावर्ड कि वो ऐसी स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। इसके लिए वो डायरेक्टली ऑडिटर को लगा सकती है या बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर को भी डायरेक्ट कर सकती है कि आप ये स्पेशल ऑडिट करो, एंड दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द ऑडिटर इटसेल्फ। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डायरेक्शंस होंगी वो बाइंडिंग होंगी, एंड इसके साथ साथ ही ऑडिटर को जो एक रिपोर्ट की कॉपी है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी होगी, एंड साथ ही साथ एक जो यहां पर रिपोर्ट की कॉपी है वो बैंकिंग कंपनी को देनी होगी। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द स्पेशल ऑडिट। Expenses in relation to the special audit have to be borne by the banking company। देखिए स्पेशल ऑडिट करवाई किसने? आरबीआई ने करवाई, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? बैंकिंग कंपनी ही उठाएगी। ओके, जो भी यहां पर खर्चा आया, चाहे वो ऑडिटर का खर्चा था, चाहे वो और कोई एक्सपेंसेस थे, वो सभी यहां पर किसके द्वारा बोर्न किए जाएंगे? दोज ऑल विल बी बोर्न बाय द बैंकिंग कंपनी इटसेल्फ। ओके, तो यहां पर एक रिक्वेस्ट है रिलेटेड की फॉरेन बैंक्स का दोबारा से बता दीजिए। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, विच आर
इनकॉर्पोरेटेड और हेडक्वार्टर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो यहां पर इंडिया में बिजनेस करेंगे तो उनको यहां पर आकर पहले रजिस्टर करवाना होगा। तो जो भी फॉरेन बैंक्स होते हैं उनको यहां पर अपनी कंपनीज को यहां पर ओपन करना पड़ता है। जो भी यहां पर ऑफिस यहां पर इंडिया में ओपन होंगे ना, वो यहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। किसके अंदर रजिस्टर होते हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर होते हैं। तो कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उनके ऊपर क्या रहेंगे? लागू रहेंगे। एंड फर्दर जब भी मैं बैंकिंग कंपनी की बात करता हूं, आई बेसिकली मेंट टू से मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल बैंक की बात कर रहा हूं तो सिंपली बैंक कहूंगा। अगर मैं बैंकिंग कंपनी कह रहा हूं तो बेसिकली एक कंपनी जो कि यहां पर बैंकिंग का काम कर रही है, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज अ बैंकिंग कंपनी, यानी कि प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं कि रिलेटेड टू फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक्स के केस में साइनिंग अथॉरिटी कौन रहेगी? जो मैनेजर है या फिर जो एजेंट है यहां पर फॉरेन बैंक का, वो यहां पर जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट है एंड फर्दर जो बैलेंस शीट हो गई या फिर जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होगी, उनके हिसाब से उसके ऊपर वो साइन करेंगे। एंड फर्दर दीज आर टू बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3 कॉपीज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगी, 3 ही कॉपीज यहां पर अलॉन्ग विद द ऑडिटर रिपोर्ट वो यहां पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगी। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट थी या फिर जो बैलेंस शीट की स्टेटमेंट थी, इनको यहां पर फॉरेन बैंक्स के केस में इनको अपने जो प्रिंसिपल ऑफिस है एंड जो ब्रांचेस है वहां पर कंस्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर इनको डिस्प्ले करना होगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के पहले यानी कि जिस पीरियड से रिलेट कर रही है उसी साल में अगस्त महीना जब आएगा, तो वहां पर एक वीक के अंदर अंदर इनको क्या करना है? उन स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करना है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में एंड ब्रांचेस में। इज दैट क्लियर? एंड ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा। आपने उनको डिस्प्ले कर दिया, उनको वहां से हटाएंगे नहीं। अगले साल की जब स्टेटमेंट्स लगाएंगे तो पुरानी स्टेटमेंट्स को हटा देंगे, नए स्टेटमेंट्स को लगा देंगे। दैट वाज रिलेटेड टू इट। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द मंथली रिटर्न्स, सेक्शन 27 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हर एक महीने जो बैंकिंग कंपनी है उसे एक रिटर्न भेजनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंडर सेक्शन 27 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसमें जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं उस बैंकिंग कंपनी के, यानी कि इसमें सभी बैंक्स की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर सभी बैंक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सभी बैंक्स को यहां पर अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो पोजीशनिंग है वो यहां पर बतानी पड़ती है एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ। यानी कि पिछले महीने में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी उनकी क्या पोजीशन थी इंडिया में, उसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट यहां पर भेजनी पड़ती है। हर एक महीने ये स्टेटमेंट जो है वो भेजनी पड़ेगी। एंड सच अ रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड बिफोर द क्लोज ऑफ मंथ सक्सीडिंग टू विच इट रिलेट्स। यानी कि जिस महीने के रिलेटेड आपने यहां पर भेजनी है, उस महीने के अगले महीने के एंड तक आपको ये स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजनी पड़ेगी। Reserve Bank of India direct the banking company to submit such statement or information within such time as it may direct। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी यहां पर डायरेक्ट किया जा सकता है। फर्दर इट इज रिलेटेड टू आरबीआई में आल्सो call for information every half yearly regarding investments of banking company or the classification of its advances in respect to industry, commerce and agriculture। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मांग सकती है रिलेटेड कि यहां पर बैंकिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कहां पर कर रखी है एंड जो यहां पर लेंडिंग कर रखी है, जो एडवांसेस कर रखे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन मांगी जा सकती है कि आपने इंडस्ट्रियल लोन कितने कर रखे हैं, आपने कॉमर्शियल लोन लेंडिंग कितनी कर रखी है एंड एग्रीकल्चरल लेंडिंग कितनी कर रखी है। इसके रिलेटेड क्लासिफिकेशन मांगी जा सकती है एंड इन्वेस्टमेंट्स का ब्यौरा भी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मांगा जा सकता है, विच कुड बी आस्क्ड इन हाफ ईयरली मैनर। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑन एसेट्स इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इट वाज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ एसेट्स। तो आपकी एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है, आपको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है। बैंकिंग कंपनी हैज टू सबमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेटमेंट, अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि एक क्वार्टरली रिटर्न रहती है। यानी कि जो भी आपके एसेट्स हैं इंडिया में वो आपको स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है कि एंड फर्दर आपको यहां पर टू द लास्ट फ्राइडे ऑफ द क्वार्टर, एज पर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द क्वार्टर
आपको 75% ऑफ द एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंटेन करने पड़ते हैं बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो बीइंग अ बैंक आपको 75% ऑफ द एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर इंडिया में मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द क्वार्टर। अगर लास्ट फ्राइडे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हॉलीडे है तो उसके केस में जो प्रीसीडिंग डे है यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ द क्वार्टर के हिसाब से तब आपको इस स्टेटमेंट को आपको अपने पास जो एसेट्स हैं वो इंडिया में मेंटेन करने पड़ेंगे, विच शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ओके। एंड रिटर्न हैज टू बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो जैसे ही क्वार्टर एंड होगा तो 1 महीने के अंदर अंदर ये रिटर्न को सबमिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। देन इट इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, यानी कि जो कोई भी आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं फॉर द लास्ट 10 years एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट है फॉर द लास्ट 10 years, उन डिपॉजिट्स के रिलेटेड आपको सेक्शन 26 के अंदर एक रिटर्न भेजनी पड़ती है एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर विद इन 30 डेज आपको एक रिटर्न भेजनी पड़ती है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रिटर्न भेजनी पड़ती है उन अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स आपके ऑपरेट नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों से, उनकी एक रिटर्न जाएगी यहां पर आरबीआई के पास, ओके। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर प्रेजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का जो रूल है ध्यान से समझिएगा, ये रूल जो है ये बेसिकली इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको इंपावर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है रिलेटेड की जो भी यहां पर बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है, इवन जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी हैं, पेड इंस्ट्रूमेंट भी हैं, अगर वो यहां पर कस्टमर्स को वापस किए जाते हैं तो यहां पर बैंक अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रू कॉपीज हैं या ओरिजिनल कॉपीज हैं, इनको अपने पास कितने देर के लिए प्रिजर्व करके रखेगा। ये रूल्स कौन फ्रेम करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर रूल्स फ्रेम करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इन रूल्स को फ्रेम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग रिगार्ड टू द फैक्टर्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35A। लेकिन देखिए साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक स्पेशल पावर है अंडर द सेक्शन 35A, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल डायरेक्शंस दे सकती है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अवमानना तो नहीं कर सकती। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि चेक को आपने 5 साल के लिए आपने रिटेन करके रखना है। मान लीजिए, जस्ट सपोज कर रहे हैं, यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि चेक को आपने बैंक ने 5 साल तक प्रिजर्व करके रखना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एक हायर पीरियड सेट कर सकती है अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक हायर पीरियड यहां पर सेट कर सकती है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 35A के अंदर कह दे कि जो यहां पर चेक है उसको 6 ईयर्स के लिए 7 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करना है, तो वहां पर वो चीज लागू होगी। तो वहां पर वो चीज लागू हो जाएगी, यानी कि जो कोई टाइम पीरियड बताया गया है अंडर द स्पेसिफाइड सेक्शन 45Y बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि एक लंबे समय के लिए यहां पर उसे मेंटेन करना चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी रूलिंग जो है वो 35A के अंडर दे सकती है। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप ये सब जानते हैं कि जो पेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक जो है उन्हें यहां पर कस्टमर को वापस कर सकता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर ए ने चेक के थ्रू पेमेंट ले ली, बट कस्टमर ए नाउ वांट्स कि उसको यहां पर चेक की ओरिजिनल कॉपी मिल जाए, तो उसके केस में यहां पर जो बैंक है एक ट्रू कॉपी ऑब्टेन करते हुए पेड इंस्ट्रूमेंट की जो ओरिजिनल पेड इंस्ट्रूमेंट है उसे कस्टमर को वापस कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर बैंक को कस्टमर से एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी कि जिस प्रिजर्वेशन पीरियड के लिए यहां पर ऑब्लिगेटेड है, बैंक यहां पर ऑब्लिगेटेड है, कस्टमर को उस पेड इंस्ट्रूमेंट को उतने पीरियड के लिए यहां पर संभाल करके रखना पड़ेगा एंड यहां पर ऐसे पेड इंस्ट्रूमेंट को देने के लिए जो भी कोई बैंक है वो यहां पर किसी भी तरह का चार्ज यहां पर ऑब्टेन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को यहां पर देने के लिए जो बैंक है वो किसी भी तरह का चार्ज यहां पर कस्टमर से नहीं ले सकता। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड स्क्रूटिनी। सेक्शन 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो 35A के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एम्पावरमेंट है कि वो यहां पर जनरल डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड फर्दर सेक्शन 35 इटसेल्फ इट इज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड स्क्रूटिनी। सो स्क्रूटिनी क्या होता है कि वहां पर नजदीक से जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट करना, दैट इज द बेसिक पर्पस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद से, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खुद से लगता है कि बैंकिंग कंपनी का कामकाज सही नहीं चल रहा
या फिर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्पावर्ड है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन सो एज टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ एनी ऑफ द बैंकिंग कंपनी। तो किसी भी बैंक की इंस्पेक्शन की जा सकती है। एंड यहां पर आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड द अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जो इंस्पेक्शन की एक रिपोर्ट है वो यहां पर बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी, वो यहां पर बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी। स्पेशल ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्पेक्शन। तो यहां पर इंस्पेक्शन की बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी इंस्पेक्शन करवा सकता है जहां कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि ऐसी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर दिया कि इंस्पेक्शन करवाओ, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एम्पावर्ड है कि वो यहां पर ऐसे इंस्पेक्शन करवा सकता है। इंस्पेक्शन के बाद यहां पर जो कॉपी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो यहां पर अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी कॉपी, एंड साथ के साथ एक कॉपी जो है वो यहां पर बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी। द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी आर बाउंड टू प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑल द बुक्स, अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जो कोई भी स्टेटमेंट, जो कोई भी डॉक्यूमेंट, जो कोई भी अकाउंट्स के बारे में इंस्पेक्शन के दौरान से यहां पर पूछा जाएगा तो डायरेक्टर्स की, ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी रहेगी वो सभी चीजें यहां पर प्रोवाइड की जाए फॉर द इंस्पेक्शन पर्पसेस। एंड फर्दर द इंस्पेक्टिंग टीम में आल्सो रिक्वायर द बैंक टू फर्निश एनी स्टेटमेंट, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन यहां पर मांगी जा सकती है यहां पर इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा। एंड जो बैंकिंग कंपनी उसको स्पेसिफाइड टाइम के बीच बीच में ये जो रिपोर्ट होगी, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोड्यूस करने होंगे। द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू एग्जामिन एनी ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑन द ओथ। ठीक है, तो यहां पर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो है वो यहां पर किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी ऑफिसर की यहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनकी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेक्शन 35 को माइंड में जरूर रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहां पर। ओके, नेक्स्ट इट इज पावर्स टू द गवर्नमेंट। तो पावर क्या है गवर्नमेंट की, उनके बारे में देख लेते हैं। सो एक कॉपी जो है यहां पर रिपोर्ट की, इंस्पेक्शन रिपोर्ट की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर करवाई है तो वहां पर उस केस में तो यहां पर कॉपी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी। जहां पर डायरेक्शन आरबीआई को दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने है कि उस बैंकिंग कंपनी की इंस्पेक्शन करवाओ, तो वहां पर तो यहां पर जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट होगी वो तो गवर्नमेंट को जाएगी। इन अदर केसेस जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद से इंस्पेक्शन यहां पर कंडक्ट की है, वहां पर मैंडेटरी नहीं है, वहां पर ऑप्शनल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉपी भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता। एंड फर्दर ऑन कंसीडरेशन ऑफ द रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगता है कि जो बैंकिंग कंपनी के जो यहां पर कार्यकाज चल रहे हैं, बैंकिंग कंपनी के जो अफेयर्स हैं, दोज आर बीइंग कंडक्टेड, वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं जो कि पब्लिक के लिए खराब है, जो कि बैंकिंग पॉलिसी के लिए खराब है, या फिर जो डिपॉजिटर्स के लिए खराब है, तो उसके केस में गवर्नमेंट यहां पर ऑर्डर इश्यू कर सकती है। तो गवर्नमेंट यहां पर बैंकिंग कंपनी को नया डिपॉजिट लेने से रोक लगा सकती है, नया डिपॉजिट लेने से रोक लगा सकती है, यानी कि मॉरिटोरियम पीरियड को लागू कर सकती है, ध्यान रखिएगा। एंड फर्दर इसके अलावा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट भी कर सकती है कि वो यहां पर हाई कोर्ट में अप्लाई कर दे फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनी, फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनी। तो दो चीजें यहां पर मेन है, पहली चीज है कि नए डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने में रोक लगा सकती है, दूसरी चीज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकती है कि जाकर के इसके वाइंडिंग अप करने के लिए एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्शन लेने से पहले, देखिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शंस हैं ये, ऐसा कुछ भी एक्शन लेने से पहले यहां पर जो भी पर्टिकुलर यहां पर बैंकिंग कंपनी है जिसकी इंस्पेक्शन की गई थी, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे थॉट्स हैं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, कि अपने आप को रिप्रेजेंट करे वो, कि क्या उसकी कोई गलती थी, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस सी, उसके बेस पर फर्दर डिसीजन पर पहुंचा जाएगा। एंड फर्दर यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू डेफर the passing of such an order or to cancel or modify such an order subject to any terms and conditions imposed by it। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर इस केस में सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कोई ऑर्डर दिया गया था, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था, चाहे वो बैंकिंग कंपनी को दिया गया था, किसी भी टाइम पर कभी भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको मॉडिफाई कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, इवन जो ऑर्डर था उसे यहां पर चेंज कर सकती है, उसे कैंसिल भी कर सकती है। एंड इट इज आल्सो ओपन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पब्लिश एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट या कुछ एक हिस्सा जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट का उसे पब्लिसाइज भी कर सकती है। एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस देना है, किसको, बैंकिंग कंपनी को सिर्फ एक नोटिस देना है। एंड नोटिस देते हुए यहां पर जो यहां पर बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फर्दर क्या कर सकती है, पब्लिसाइज कर सकती है। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू स्क्रूटिनी. It is related to scrutiny. So Reserve Bank of India is empowered to conduct a scrutiny of the affairs and the books of the account of the any banking company under the subsection 1A of the Banking Regulation Act. अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्क्रूटिनी भी कर सकती है, जांच पड़ताल सिंपल कर सकती है किनकी, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है एंड जो भी बैंकिंग कंपनी के स्टेटमेंट्स हैं उनकी यहां पर स्क्रूटिनी की जा सकती है। सो वन और मोर ऑफिसर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंडक्ट सच स्क्रूटिनी। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर जो हैं वो ऐसी स्क्रूटिनी करेंगे। एंड फर्दर A copy of the report has to be furnished to the banking company. जो भी ऐसी स्क्रूटिनी की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसकी एक कॉपी जो है वो यहां पर बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी। किस केस में? अगर बैंकिंग कंपनी ऐसी रिक्वेस्ट करती है तो वहां पर जो ऐसी कॉपी है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी। ओके। और अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट है, जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्क्रूटिनी कराई अपने ऑफिसर्स के थ्रू एंड उसमें कोई एडवर्स रिमार्क आया, तो उसके केस में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ही एक कॉपी जो है वो किसको दे देगी, बैंकिंग कंपनी को दे देगी। अदरवाइज यहां पर अगर बैंकिंग कंपनी के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है तो यहां पर जो कॉपी है वो बैंकिंग कंपनी को दी जाएगी। अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्क्रूटिनी करवाई तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी बैंकिंग कंपनी के पास जाए। ओके। आफ्टर दैट द पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक टू कॉल फॉर बुक्स। तो इस पर्पस के लिए, स्क्रूटिनी के पर्पस के लिए जो कोई भी ऑफिसर अपॉइंटेड है उनको किसी भी तरह की बुक्स चाहिए, किसी भी तरह के अकाउंट चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी स्टेटमेंट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जामिन करने के लिए, किसी भी डायरेक्टर से रिलेटेड, किसी भी ऑफिसर से रिलेटेड, तो वो यहां पर स्क्रूटिनी के पर्पस से यहां पर उन डॉक्यूमेंट्स को, अकाउंट्स को, स्टेटमेंट्स को, किसी भी तरह की चीजों को हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। ओके। देन इट इज BFS. that is Board for Financial Supervision. बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। सो BFS यानी कि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जो कि एक कमेटी है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर द रेगुलेशन 4 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 1994। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशंस हैं 1994 में जो आई थी, उनके हिसाब से बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक कमेटी है। ओके। द रेगुलेशंस वर फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 58 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो जो रेगुलेशंस बनाई गई थी उनको फ्रेम किसके अंदर किया गया था? रेगुलेशंस आई थी 1994 में। फ्रेम कौन से सेक्शन के अंदर थी? सेक्शन 58 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ओके। एंड यहां पर जो इन फ्रेमिंग की गई थी रेगुलेशंस की, इसके लिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही इजाजत ले ली गई थी। एंड प्रीवियस सेक्शन के साथ बाद में इन जो यहां पर रेगुलेशंस थी इनको बनाया गया था सेक्शन 58 के अंदर। एंड फर्दर रेगुलेशंस के अंडर यहां पर BFS को यहां पर फर्दर एक एस्टैब्लिशमेंट दी गई थी। ओके। सो बोर्ड हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द बैंकिंग कंपनी। तो जो बोर्ड बनाया गया, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो बनाया गया है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन में जो सभी बैंकिंग कंपनीज हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, स्टेट बैंक हैं, ये सभी इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ओके। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कंपोजिशन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। सो जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो यहां पर इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। एंड वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स विल बी नॉमिनेटेड एज अ फुल टाइम वाइस चेयरमैन। तो यहां पर जो गवर्नर है वो चेयरमैन होंगे, जो यहां पर डिप्टी गवर्नर होंगे वो फुल टाइम वाइस चेयरमैन होंगे। एंड 4 डायरेक्टर्स जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें से 4 डायरेक्टर जो होंगे वो यहां पर BFS के मेंबर होंगे, विल बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर्स। अब इसके अलावा BFS में जो और स्टाफ चाहिए वो भी अपॉइंट किया जाता है। अगर कोई बाहर से अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी यहां पर अपॉइंटमेंट यहां पर BFS में की जाती है। ओके। तो फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो इट परफॉर्म्स द फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर यहां पर देखिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, दैट इज फॉर बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है। तो यहां पर सुपरविजन के लिए, रेगुलेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जो कि यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के दायरे में रहते हुए ही बैंक्स की इंस्पेक्शन करेगा, उनकी यहां पर सुपरविजन करेगा।
Okay, and in relation to different sectors of the financial systems including banking companies, it also performs any other function जो कि यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। अगर सेंट्रल बोर्ड कुछ भी नोटिफाई करती है तो वो फंक्शन भी यहाँ पर बीएफएस के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। द बोर्ड इज असिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा बोर्ड को। एंड फर्दर बाहर से जो पर्सनल है, बाहर से इंप्लॉयज को भी यहां पर रख सकती है अपनी नीड्स के हिसाब से। अगर मीटिंग्स की बात करें तो यहां पर महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की मीटिंग होगी। इसके अलावा बोर्ड के पास पावर होती है सब कमेटीज को बनाने की, सब कमेटीज को फर्दर बनाने की। खुद एक कमेटी है लेकिन फर्दर सब कमेटीज को बनाने की पावर रहेगी। एंड वन सच सब कमेटी जो होती है, एक ऐसी जो सब कमेटी फॉर्म की जाएगी, that is a executive committee, that is what, that is a executive committee। and ये जो executive committee रहेगी ये ज्यादा ऑफन मीटिंग्स करती है, ये ज्यादा ऑफनली मीटिंग्स करती है। ओके, तो यहां पर दोबारा से आपको बता देता हूं, बीएफएस जो है वो यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस है उनके अंदर इसको बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बनाई गई थी अंडर द सेक्शन 58 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एंड फर्दर यहां पर बीएफएस को सेटअप किया गया था। जो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो इसके चेयरमैन होंगे, जो वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स हैं वो यहां पर इसके फुल टाइम वाइस चेयरमैन होंगे। एंड फर्दर चार यहां पर जो डायरेक्टर्स हैं सेंट्रल बोर्ड से वो यहां पर इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, एंड फंक्शंस की बात करते हैं तो सुपरविजन की एंड इंस्पेक्शन की पावर्स हैं जो कि यहां पर आरबीआई एक्ट के अंडर एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर यहां पर इनको दी गई हैं। इसके अलावा ये सब कमेटीज भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर सेंट्रल बोर्ड यहां पर कोई भी रूल रेगुलेशन को बताता है जिसको फॉलो किया जाना है तो वैसे टास्क भी इनके द्वारा परफॉर्म की जाएगी। एंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन इनको यहां पर डीओएस के द्वारा इनको असिस्ट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है उनके द्वारा सेंट्रल यहां पर जो बीएफएस है इसको असिस्ट किया जाता है। एंड इसके अलावा ये बाहर से भी यहां पर जो पर्सनल है उनको यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू द acquisition of undertakings, it is related to the acquisitions of undertaking। Okay, so if on receipt of a report from the Reserve Bank the government is satisfied that it is necessary to acquire any undertaking on certain grounds। अंडरटेकिंग मीन्स जैसे मान लीजिए हम पढ़ते नहीं है कि जैसे बैंक के बाहर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है अल्टीमेटली कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो यहाँ पर शेयरिंग है, जो यहाँ पर शेयर है गवर्नमेंट का उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी अंडरटेकिंग जो है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कोई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड है कि हाँ ऐसी अंडरटेकिंग को अब एक्वायर कर लेना चाहिए, तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर द अंडरटेकिंग्स, यानी कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहां पर अपने अंडर फिर से एक्वायर कर सकती है। एंड दैट इज एज पर सेक्शन 36 AE ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेकिन ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि एक बार कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो वो ऐसी कंसल्टेशन कर सकती है। तो ऐसा रीजन क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगा, ऐसी रिपोर्ट भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। हो सकता है कि बैंकिंग कंपनी ने एक या उससे ज्यादा ओकेजन्स के ऊपर जो डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं अंडर सेक्शन 35A या सेक्शन 21 के अंदर यहां पर जो रेगुलेशंस दी गई थी, जो डायरेक्शंस दी गई थी उनको फॉलो नहीं किया, या फिर हो सकता है बैंकिंग कंपनी ने यहां पर इस तरीके से उसको चलाया जा रहा है जो कि डेट्रीमेंटल है डिपॉजिटर्स के लिए, या फिर हो सकता है कि यहां पर अंडरटेकिंग को एक्वायर करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो यहां पर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है वो खराब हो रहा है, बैंकिंग पॉलिसी के हित में अफेयर्स नहीं है, या फिर बैंकिंग पॉलिसी जो है उसका खराब किया जा रहा है, उसको यहां पर मान लीजिए बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है या फिर मैनेजमेंट सही नहीं है, उसकी केस में भी ऐसी एक्विजिशन की जा सकती है। सो बिफोर एक्वायरिंग द एसेट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, देखिए बैंकिंग कंपनी को एक्वायर करने से पहले एक चांस दिया जाएगा, एक उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो शो कोज करे कि क्या यहां पर दिक्कत है, यानी कि प्रपोजल दे दी जाएगी उसको कि हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड उसे शो कोज करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, तो यहां पर एक उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आफ्टर दैट ऑन एक्विजिशन ऑफ द अंडरटेकिंग, अब अगर एक बार यहां पर एक्वायर हो गया, एक्वायर कर लिया, यानी कि प्रोसेस क्या होगा कि आरबीआई यहां पर रिपोर्ट यहां पर फॉरवर्ड करेगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी।
एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ऑर्डर पास करेगी। एंड ऑर्डर पास करने से पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करनी चाहिए तो ऐसी कंसल्टेशन वो कर सकते हैं। एंड एक बार ऑर्डर पास हो जाएगा तो जिस बैंकिंग कंपनी के लिए ऑर्डर पास किया गया है, जिस बैंकिंग कंपनी के लिए ये ऑर्डर पास किया गया है, उस बैंकिंग कंपनी के ऑर्डर की डेट से जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, वो यहां पर सभी की सभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में आ जाएंगी। एंड फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि रेदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने अंदर मिलाए, ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैंकिंग कंपनी को किसी और बैंकिंग कंपनी के अंदर भी मिला सकती है, किसी और बैंकिंग कंपनी के अंदर भी एक्वायर कर सकती है, ऐसा ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। यानी कि बैंकिंग कंपनी 1 है, यहां पर BC1 है, एंड फर्दर यहां पर BC2 है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि BC2 जो है वो BC1 को एक्वायर कर ले, तो उसके केस में BC1 के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थे वो यहां पर BC2 के साथ यहां पर मिल जाएंगे। ओके, फर्दर इट इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम। So the central government is empowered to make scheme for any acquired bank। तो जो कोई भी बैंक एक्वायर किया गया है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, एंड फर्दर इसके लिए कंसल्टेशन की जा सकती है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, लायबिलिटीज, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज, द टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू शेयर होल्डर्स। तो जो कोई भी यहां पर दिक्कतें आने वाली हैं एक्विजिशन के दौरान, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी को लेकर है, चाहे जो एक्वायर्ड बैंक है उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे उसके बोर्ड के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे एम्प्लॉयज जो वहां पर लगे हुए हैं उनकी सर्विस से रिलेटेड है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है, चाहे जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है उस बैंकिंग कंपनी में उनके यहां पर पेमेंट से रिलेटेड है, उन सभी इश्यूज को यहां पर इस स्कीम में मेंशन किया जाएगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहां पर ऐसे स्कीम को टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सकती है कंसल्टिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड स्कीम एंड एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन देयर ऑफ इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। तो यहां पर जब भी कोई स्कीम पेश की जाएगी तो यहां पर अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए जाए हैं तो ऑफिशियल गजेट में उसे पब्लिश किया जाएगा, एंड फर्दर फिर उसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, फिर उसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। The provisions of the act providing for acquisition and undertakings by the of the banks by the government on of any scheme framed there under shall have an overriding effect on all the other laws। तो यानी कि सेक्शन 36 के अंदर, सेक्शन 36 के अंदर हमने ये देख लिया कि एक्वायर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर भी कर सकती है एंड साथ के साथ एक स्कीम भी प्रिपेयर कर सकती है। तो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी वो प्रिपेयर करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे मॉडिफाई भी कर सकती है। मॉडिफाई करेगी तो यहां पर जो ऑफिशियल गजेट है, ऑफिशियल गजेट है वहां पर पहले इसको डालना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसके बाद पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा। ओके, एंड फर्दर जो प्रोविजंस है यहां पर, जो प्रोविजंस है यहां पर, यानी कि जो कोई भी स्कीम बनाई गई है या किसी बैंक को यहां पर एक्वायर किया गया है, अंडरटेकिंग को एक्वायर किया गया है, तो उसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, उसका क्या होगा, एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा बाकी सभी कानूनों के ऊपर। यानी कि अगर स्कीम में कुछ कह दिया एंड दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द अदर लॉज, तो यहां पर स्कीम में जो कह दिया वही चीज मानी जाएगी, बाकी सभी चीजों को यहां पर नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है। ओके, एंड फर्दर जो भी स्कीम यहां पर प्रिपेयर की जाएगी, यहां पर जो भी स्कीम सैंक्शन की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट विल बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्वायर्ड बैंक है, जो मेंबर्स हैं यानी कि जिन्होंने पैसा लगा रखा है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, सभी के ऊपर एक बाइंडिंग इफेक्ट होगा उस चीज का। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू कंपनसेशन टू शेयर होल्डर्स, कंपनसेशन टू शेयर होल्डर्स। The amount of compensation to shareholders of the acquired bank will be determined as provided in the 5th schedule of the act। जो 5th शेड्यूल एक्ट का उसके हिसाब से कंपनसेशन को यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, एंड ये भी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद डिफाइन की जाएगी। एंड इफ द कंपनसेशन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेसिकली नॉट एडिक्वेट, अगर यहाँ पर जो ट्रांसफरी बैंक ने कंपनसेशन ऑफर की, जैसे इस तरह से समझिएगा, इस तरह से समझिएगा कि यहाँ पर अगर बैंकिंग कंपनी है, लेट अस सपोज ये बैंकिंग कंपनी है जिसके जो इंटरेस्ट थे जो यहाँ पर खराब तरीके से चलाई जा रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑर्डर पास कर दिया कि इस बैंकिंग कंपनी को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, एक्वायर कर दिया जाए। लेट अस सपोज कि BC2 में एक्वायर कर दिया जाए, BC2 इसको एक्वायर कर ले, तो BC2 ने इसको एक्वायर कर लिया, यानी कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी BC1 के थे वो यहाँ पर अब BC2 में आ गए। तो यहाँ पर एक स्कीम बनाई गई, यहाँ पर किसके द्वारा, एक स्कीम बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है जहां पर क्या कहा गया है, जहां पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी यहां पर एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो भी यहां पर इसके मैनेजमेंट है, उन सभी चीजों के साथ किस तरह से डील किया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, अब फर्दर यहां पर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने यहां पर इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, अब उनको भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो जो शेड्यूल 5 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो डिसाइड करता है कि यहां पर शेयर होल्डर्स को कितना यहां पर कंपनसेशन मिलेगा। अब यहां पर बैंकिंग कंपनी ने जिसको एक्वायर किया था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था तो वो यहां पर बताएंगे कि कंपनसेशन कितनी की जाएगी। लेकिन अगर यहां पर जो शेयर होल्डर्स है उनको लगता है कि कंपनसेशन यहां पर सही नहीं है, जो कंपनसेशन है वो हमें कम मिल रही है, तो उसके केस में वो यहां पर जो मैटर है फर्दर उसे अप्लाई कर सकते हैं। ही मे रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। तो यहां पर इस पर्पस के लिए एक ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाता है। तो यहां पर एक ट्रिब्यूनल जो होता है वो रहता है, एंड फर्दर वहां पर उस ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट जो है वो की जा सकती है कि यहां पर जो कंपनसेशन दी जा रही है दैट इज नॉट एडिक्वेट। ठीक है, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है उनको उस केस में। इज इट क्लियर? After that, it is related to amalgamation of banks. So that was related to acquiring the undertakings. That was related to acquisition. Okay, तो ये acquisition के बारे में मैंने पढ़ा, which is covered under section 36. तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. So that was related to the acquisition that was covered in section 36. Okay, तो यहाँ पर ये सेक्शन 36 के अंदर कवर्ड है, एंड देन इट इज नाउ रिलेटेड टू द अमलगमेशन ऑफ द बैंक्स व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू वॉलंटरी अमलगमेशन। इट इज रिलेटेड टू वॉलंटरी अमलगमेशन, यानी कि एक बैंक खुद चाहता है कि मैं दूसरे बैंक में मिल जाऊं, उससे रिलेटेड है। सो बैंकिंग कंपनी में बी अमलगमेटेड विद द अनदर बैंकिंग कंपनी। फॉर दिस पर्पस अ स्कीम हैज टू बी प्रिपेयर्ड। तो एक स्कीम बनाई जाएगी जिसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमलगमेशन के रिलेटेड उनको एक ड्राफ्ट के रूप में बनाया जाएगा। एंड फर्दर जो भी दोनों कंपनीज है, जैसे मान लीजिए कंपनी ए है, बैंकिंग कंपनी ए है, एंड यहां पर बैंकिंग कंपनी बी है। अब बैंकिंग कंपनी बी चाहती है कि हमें अमलगमेट कर दिया जाए विद द BCA। ठीक है, हमें यहां पर अमलगमेट कर दिया जाए विद द BCA। तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक स्कीम प्रिपेयर की जाएगी, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, एंड दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स के सामने इन ड्राफ्ट्स को रखा जाएगा। अब यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एंड बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था अगर वो यहां पर वैलिडेट कर दिया जाता है, अगर उसे यहां पर वैलिडेट कर दिया जाता है कि हाँ इनको मंजूर है दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा बाय 2/3 इन वैल्यू, तो एक स्कीम बनाई जाएगी। सबसे पहली चीज क्या है, स्कीम बनाई जाएगी अमलगमेशन से रिलेटेड, एंड फर्दर उस स्कीम को एक ड्राफ्ट के रूप में बनाया जाएगा। अब ये जो ड्राफ्ट रूप में जो यहां पर स्कीम बनाई गई है ये दोनों कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने रखी जाएगी। एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा यहां पर मेजोरिटी के द्वारा। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है बाय द 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईच कंपनी, तो उसके केस में अमलगमेशन वैलिड हो जाएगी। एंड फर्दर उसके बाद जो स्कीम है मेजोरिटी के द्वारा जो वैलिड हो गई है, तो स्कीम को यहां पर RBI के पास भेजा जाएगा फॉर द सैंक्शन पर्पसेस। उसके बाद जो स्कीम है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा सैंक्शन पर्पसेस। जब RBI ने सैंक्शन कर दिया यानी कि तब ये बैंकिंग कंपनी अमलगमेशन के लिए पास हो गई। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी पास टू द बैंकिंग कंपनी विद विच इट इज अमलगमेटेड। तो जैसे हमने कहा था कि BC जो यहां पर BCB है यानी कि बैंकिंग कंपनी B है उसको अमलगमेट करना था यहां पर बैंकिंग कंपनी 1 के साथ, A के साथ। तो यहां पर पहले इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, ड्राफ्ट बनाया, स्कीम बनाई, 2/3 ऑफ द यहां पर इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जहां पर 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स के द्वारा इसे पास कर दिया गया। एंड फर्दर इसे कहां भेजा जाएगा, फर्दर अब इसे RBI के द्वारा पास भेजा गया, यहां पर सैंक्शन पर्पस के लिए सबमिट किया गया। RBI ने सैंक्शन कर दिया तो इसके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उस डेट से, पर्टिकुलर फ्रॉम द डेट ऑफ द सैंक्शन, ठीक है, वो यहां पर BCA के साथ यहां पर मान लिए जाएंगे, अमलगमेटेड मान लिए जाएंगे। एंड फर्दर Reserve Bank of India may also direct the amalgamated company withstand dissolved from any specified date। तो Reserve Bank of India स्पेसिफिकली ये भी कह सकती है कि जो यहां पर amalgamated कंपनी थी वो यहां पर किसी पर्टिकुलर डेट से डिसॉल्व मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर जब अमलगमेशन की गई, मर्जर किया गया बैंक्स का, उसके केस में अल्टीमेटली क्या रहा, ये कहा गया कि फ्रॉम द
1st of April ऑफ द नेक्स्ट ईयर कहा गया ना कि 1st of April से यहां पर अमेलगमेटेड रहेंगी, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर तारीख बता दी कि इस पर्टिकुलर तारीख से जो कंपनीज हैं उनको अमेलगमेटेड माना जाएगा एंड इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंगली, एंड उसके अकॉर्डिंग यहां पर रजिस्ट्रार को जो कंपनीज आरओसी हैं उनको यहां पर इंटीमेट कर दिया जाता है। The order of sanction of amalgamation by Reserve Bank will be conclusive evidence of amalgamation, यानी कि amalgamation के केस में सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चलती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने amalgamate कर दिया तो that is basically the evidence of amalgamation, that is the basic evidence of amalgamation. Then it is a amalgamation by government, तो क्या गवर्नमेंट भी कर सकती है? The central government is empowered to order amalgamation of the two banking companies. However, power has to be exercised only after consultation with the Reserve Bank of India. तो कंसल्टेशन के बाद ही इसे यहां पर लागू किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो यहां पर अमेलगमेशन का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, एंड आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू मॉरेटोरियम एंड अमेलगमेशन। नाउ व्हाट इज मॉरेटोरियम? कई बार क्या होता है कि बैंकिंग कंपनी इतना ज्यादा बुरा चल रही थी या फिर एकदम से उसमें बहुत ज्यादा बड़ा लॉस सामने आ गया, जिसकी वजह से उसे यहां पर लॉस मेकिंग एंटिटी बन गई वो। अब उस लॉस मेकिंग एंटिटी को यहां पर कहीं ना कहीं किसी बैंक के बीच में अमेलगमेट करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, एंड फर्दर उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक यहां पर उसे मर्ज नहीं करते हैं एक मॉरेटोरियम पीरियड लगा दिया जाता है। तो होता क्या बेसिकली, जैसे हम कहते हैं कि ये बैंकिंग कंपनी है पर्टिकुलरली, एंड इसका जो इंटरेस्ट था वो काफी ज्यादा बुरा चल रहा था, यानी कि इसने काफी ज्यादा इसमें घपला हो गया, बहुत बड़ा इसमें घपला हो गया, या इसको काफी ज्यादा बड़ा लॉस हो गया मार्केट में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, बैंकिंग कंपनी क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड ये अपने डिपॉजिटर्स को पैसा भी नहीं दे पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके केस में जैसे ही ऐसा पता चला, जैसे ही गवर्नमेंट की नॉलेज में ऐसी चीज आई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉलेज में ऐसी चीज आई, इन्होंने इसके ऊपर मॉरेटोरियम प्लेस कर दिया। क्या प्लेस कर दिया? मॉरेटोरियम प्लेस कर दिया। मॉरेटोरियम का मतलब क्या है कि यहां पर फ्रेश डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करना या लायबिलिटीज को यहां पर फर्दर आगे पे नहीं करना, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। हाल ही में पीएमसी के ऊपर लगाई गई थी, हाल ही में येस बैंक के ऊपर लगाई गई थी, ठीक है। तो यहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है दैट इज रिलेटेड टू द मॉरेटोरियम, एंड जब एक बार यहां पर मॉरेटोरियम लगा दिया गया, जब यहां पर एक बार मॉरेटोरियम लगा दिया गया, उसके टाइम के इन बिटवीन यहां पर एक स्कीम प्रिपेयर की जाती है, उसके टाइम के इन बिटवीन एक स्कीम प्रिपेयर की जाती है, एंड दैट स्कीम वुड बी रिलेटेड टू व्हाट, दैट स्कीम वुड बी रिलेटेड टू कि हमने यहां पर ये वो स्कीम प्रिपेयर की जाती है कि यहां पर किस तरह से इसको किस बैंकिंग कंपनी के बीच में मर्ज किया जाए, वो पर्टिकुलर स्कीम यहां पर प्रिपेयर की जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड अंडर द सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सो एज टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ द एनी बैंकिंग कंपनी वेयर इट अपीयर्स दैट इट हैज देयर अ गुड रीजन टू डू सो। तो यहां पर एप्लीकेशन कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। किसको एप्लीकेशन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा रिलेटेड टू कि मॉरेटोरियम लगाना जरूरी है, बैंकिंग कंपनी के जो यहां पर कार्यकाज है वो सही नहीं चल रहा है, दैट इज डेट्रीमेंटल टू दैट ऑफ द डिपॉजिटर्स, दैट इज डेट्रीमेंटल टू दैट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, उसके केस में यहां पर एप्लीकेशन दी जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा, एंड एक ऑर्डर जो है यहां पर पास किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो एज टू इंपोज द मॉरेटोरियम, एंड फर्दर जो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो यहां पर फिक्स की जाएंगी, एंड जो मॉरेटोरियम है दैट इज बेसिकली एक्सटेंडेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो यहां पर टाइम टू टाइम एक्सटेंडेबल है, एंड मैक्सिमम 6 महीने तक का मॉरेटोरियम यहां पर लगाया जा सकता है। इन बिटवीन यहां पर अमेलगमेशन से रिलेटेड जो यहां पर स्कीम है उसे प्रिपेयर किया जाएगा, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मॉरेटोरियम जो बैंकिंग कंपनी है जिसके ऊपर मॉरेटोरियम लगाया गया है उसे यहां पर हो सकता है कि अलाउ ना किया जाए कि वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं देगी, अपनी किसी भी तरह की लायबिलिटी को पे नहीं कर सकती है, या फिर जो भी ऑब्लिगेशंस है उनको पे नहीं करेगी, एंड फर्दर जैसे भी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी इन द ऑर्डर ऑफ द मॉरेटोरियम, उन डायरेक्शंस को यहां पर फॉलो करना पड़ेगा उस बैंकिंग कंपनी को जिसके ऊपर मॉरेटोरियम लगाया गया है। एंड आफ्टर दैट स्कीम फॉर अमेलगमेशन, तो मॉरेटोरियम पीरियड लगा दिया, उस टाइम के पीरियड के दौरान किया क्या जाएगा, उस टाइम पीरियड के दौरान एक स्कीम को प्रिपेयर किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर एक स्कीम को प्रिपेयर करती है कि किस तरह से इस बैंकिंग कंपनी को फिर से उभारा जाए, फिर किस तरह से इसको एक वायबल इंस्टीट्यूट बनाया जाए इससे रिलेटेड, या फिर इसको किसी और बैंकिंग कंपनी में अमलगमेट कर दिया जाए, ताकि यहां पर जो लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको अगर किसी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में, बड़ी एंटिटी में मिला देंगे तो डेफिनेटली वो उसके लॉस को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड वो सही से चलती रहेगी। ओके, सो सच अ स्कीम इज टू बी प्रिपेयर्ड इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड इट इज नेसेसरी टू डू सो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि ऐसा करना जरूरी था, उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा करेगी, उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर सकती है। एंड फर्दर
क्यों करेगी? अगर उसको लगता है कि ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसा डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में, एंड फर्दर फॉर सिक्योरिंग द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एज अ होल। क्योंकि अगर एक बार बैंकिंग कंपनी से ट्रस्ट छूट गया लोगों का, तो सभी बैंक से ट्रस्ट छूट जाएगा। इस चीज को समझना जरूरी है। ओके, तो बैंक में ट्रस्ट बनाए करने के लिए अगर पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है तो यहां पर स्कीम प्रिपेयर की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड फर्दर जो स्कीम बनाई जाएगी अमलगमेशन में, उसमें डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी चीजें? मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन उसका चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल एसेट्स को चेंज करना है, पावर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट को चेंज करना है, इन सभी चीजों को चेंज किया जा सकता है। फर्दर ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स ऑफ द ट्रांसफर बैंक टू द ट्रांसफरी बैंक, यानी कि जिस बैंक को यहां पर मॉनिटरिंग में डाला गया था उसके एसेट्स को बैंक यहां पर खराब था उसके एसेट्स को जिस बैंक में मिलाया गया उसमें मिला देंगे। एंड फर्दर चेंज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेजमेंट को चेंज करना है, वैसा भी किया जा सकता है। अगर मेमोरेंडम को चेंज करना है, यानी कि एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं यहां पर, उनको अगर चेंज करना है तो उसमें ऑल्टरेशंस की जा सकती हैं। फर्दर अगर यहां पर continuation of action by or against the banking company after the amalgamation or reconstruction, यानी कि जो कोई भी एक्शन चलाया जा रहा था कि यहां पर ये चीज बेसिकली हुई क्यों, उसको कंटिन्यू करना है, या फिर जो बैंकिंग कंपनी को मर्ज कर भी दिया गया, अमलगमेट कर भी दिया दूसरी बैंकिंग कंपनी में, अगर उस एक्शन को फर्दर चलाए रखना है बैंकिंग कंपनी के खिलाफ, उसके बारे में जो भी डायरेक्शंस है वो भी दी जाएंगी। फर्दर रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स का राइट है, मेंबर्स की जो होल्डिंग है उसको कम करना। डिपॉजिटर्स और अदर क्रेडिटर्स कंसीडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हमने जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है उसको कम करना है, उसके रिलेटेड डायरेक्शंस है वो यहां पर दी जाएंगी। पेमेंट इन कैश और अदरवाइज टू क्रेडिटर्स एंड अदर डिपॉजिटर्स, यानी कि बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूं, बेसिक सी चीज बताता हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने वाली चीज है वो इतनी चीज समझ लीजिए कि जब मॉरेटोरियम इंपोज किया गया, वो यहां पर जो आरबीआई वो दो चीजों की तरफ ध्यान देगी। एक चीज तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, यानी कि जिस बैंकिंग कंपनी में घपला हुआ, जिसमें लॉस हुआ, जिसको अमलगमेट करने की बात कर रहे हैं उसके केस में, या फिर जिसको मॉरेटोरियम में इंपोज किया उसके केस में, उसको उभारने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, उसको उभारने के लिए यानी कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम यहां पर क्या स्टेप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू डेट, अगर लगता है कि नहीं रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, वायबिलिटी नहीं बनेगी, तो उसके केस में जो दूसरी बैंकिंग कंपनी में उसको मिलाना है, उसमें अमलगमेट करना है, उसके रिलेटेड यहां पर स्कीम बनाई जाएगी। that is the basic purpose related to it. Okay, further sanction of scheme by government, तो यहां पर एक स्कीम बनाई, यहां पर किसने बनाई? ये स्कीम बनाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड फर्दर ये जो स्कीम है यहां पर प्रेजेंट की जाएगी, यहां पर किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये स्कीम को प्रेजेंट किया जाएगा। एंड फर्दर ये बैंकिंग कंपनी जिसको अब मॉरेटोरियम जिसके ऊपर इंपोज किया गया, जिसको हम अमलगमेट करने की बात कर रहे हैं, उसको भी ये स्कीम जो है वो दी जाएगी। एंड जिस बैंकिंग कंपनी में हमने अमलगमेट करना है उस बैंकिंग कंपनी को भी ये स्कीम जो है वो भेजी जाएगी। एंड उनके सुजेशंस मांगे जाएंगे, उनके ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, एंड उनके लिए उनको स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाएगा। तो जिस बैंकिंग कंपनी के ऊपर मॉरेटोरियम इंपोज है उसको भी भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजेंगे, एंड जिस बैंकिंग कंपनी में इसको मिलाना है, लेट अस सपोज BC2 में इसको अमलगमेट करना है, उसको भी यहां पर इस स्कीम की कॉपी भेजी जाएगी। स्कीम का मतलब क्या है? जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगी कि एसेट्स का क्या करना है, एम्प्लॉयज का क्या करना है, डिपोजिटर्स का क्या करना है, शेयर होल्डर्स का करना है, उसके रिलेटेड। ठीक है, तो वो स्कीम या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाई, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी, बैंकिंग कंपनी को भेज दी, जिस बैंकिंग कंपनी में अमलगमेशन की जानी है उसको भेज दी, एंड उनके सजेशंस मांगे जाएंगे, उनके ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे। ओके, द गवर्नमेंट में सैंक्शन द स्कीम विद मॉडिफिकेशन एज इट में कंसीडर, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, एंड फर्दर उस स्कीम को सैंक्शन कर देगी। एंड जैसे ही सैंक्शन करेगी उसी तारीख से उस स्कीम को वहां पर मान लिया जाएगा। उस पर्टिकुलर डेट से उस स्कीम को सैंक्शन करने का इफेक्ट क्या हो गया? उस सैंक्शन का इफेक्ट ये होगा कि यहां पर जो बैंक था उसके एसेट्स लायबिलिटीज जो थे वो यहां पर BC2 के एसेट्स लायबिलिटीज बन जाएंगे, एंड वो एक बाइंडिंग होगी किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर मॉरेटोरियम इंपोज था। बैंकिंग कंपनी जिसमें उसको मर्ज किया गया है, बैंकिंग कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक होगी, उनके डिपॉजिटर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, हर एक पर्सन जिसकी किसी भी तरह का राइट है, जिसकी किसी भी तरह की लायबिलिटी है उस कंपनी के रिलेटेड, उन सभी के ऊपर एक बाइंडिंग रहेगी। ओके,
The sanction by the central government is the conclusive evidence that the amalgamation or reconstruction has been done in compliance with the provisions of the section 45. तो यहाँ पर जो सैंक्शन की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि ऐसी जो बैंकिंग कंपनी है उसको अमलगमेट कर दिया गया है. इज इट क्लियर? जब तो वॉलंटरी अमलगमेशन की बात कर रहे थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास था, लेकिन जब यहाँ पर कंपनी का इफेक्ट खराब हो गया था, बैंक खराब हो गया था, उसके केस में अमलगमेशन की गई थी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसका अपर हैंड रहेगा. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर जिस बैंक में ट्रांसफर किया गया है उसके एसेट्स लायबिलिटी बन जाएंगे. अगर कोई डिफिकल्टी आती है, मान लीजिए स्कीम को इंप्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी भी आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नेसेसरी ऑर्डर्स को पास कर सकता है ताकि जो भी डिफिकल्टी आ रही है उनको रिमूव किया जा सके. एंड यहाँ पर एक सिंगल स्कीम भी बनाई जा सकती है. जैसे मान लीजिए मल्टीपल बैंक्स के ऊपर अगर इंप्लीमेंट करना है तो एक सिंगल स्कीम भी बनाई जा सकती है जिसके तहत जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनको अमलगमेट किया जा सकता है. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 एंड द स्कीम सैंक्शन देयर शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज. तो जो भी स्कीम सैंक्शन की जाती है ना रिजर्व बैंक यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है बाकी सभी लॉज के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर. ओके, इज दैट क्लियर? तो दैट इज रिलेटेड टू द अमलगमेशन, दैट वाज रिलेटेड टू द अमलगमेशन. तो इस अमलगमेशन को हमने पढ़ा था, स्कीम फॉर अमलगमेशन को हमने पढ़ा था अंडर द सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. अंडर द सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोट कर लीजिए. देन इट इज रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स. इट इज रिलेटेड टू द वाइंडिंग अप ऑफ द बैंक्स. सो सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस एंड वाइंडिंग अप, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन. अगर कोई बैंकिंग कंपनी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट अप नहीं कर पा रही है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है, अभी बैंकिंग बिजनेस कर रही है इंडिया में, एंड ये अपने यहाँ पर जो इसकी ऑब्लिगेशंस है, जो इसके ऊपर लायबिलिटीज है, उनको मीट अप नहीं कर पा रही है, तो ये बैंकिंग कंपनी जाएगी हाई कोर्ट के पास कि यहाँ पर ये वाइंड अप करना चाहती है, ये अपने आप को लिक्विडेट करना चाहती है, ये यहाँ पर अपने आप को लिक्विडेट करना चाहती है. तो यहाँ पर अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वहां पर बैंकिंग कंपनी हाई कोर्ट के पास जाएगी एंड अप्लाई कर देगी अंडर सेक्शन 37 रिलेटेड टू द वाइंडिंग अप. बट ऐसी वाइंडिंग अप जो होगी वो उसके लिए यहां पर इनको एक, अगर मान लीजिए ये कहते हैं ना कि मैं अपनी लायबिलिटीज को फिल नहीं कर पा रही हूं, मैं अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही हूं, अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही हूं, ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेट यहां पर इनको पहले लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा सर्टिफिकेट देगा, फिर उसके बाद यहां पर जो बैंकिंग कंपनी है वो यहां पर हाई कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकती है. अदरवाइज ऐसे नहीं है, खुद ही चलेगी, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकती. यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप अलाउड नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हमने मान लिया आप पैसे नहीं दे पाओगे, फिर बैंकिंग कंपनी हाई कोर्ट में जाकर के अप्लाई कर सकती है. ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड कि यहां पर क्या कहा गया है, मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर स्टेइंग द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इट, ताकि यहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको चलाया जा सके. सच स्टे विल बी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एंड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज्ड बाय द हाई कोर्ट. तो जो कोई भी स्टे लगाया गया है वो यहां पर हाई कोर्ट की कंडीशंस के हिसाब से लगाया जाएगा. टोटल पीरियड ऑफ सच मॉनिटोरियम, जो भी यहां पर टोटल पीरियड लगाया जाएगा मॉनिटोरियम का, वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है. एंड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटोरियम शैल बी सपोर्टेड बाय अ रिपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक इंडिकेटिंग दैट द बैंकिंग कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स डेब्ट इफ द एप्लीकेशन इज अलाउड. तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर यहां पर इसने अप्लाई कर दिया कि कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर इसके खिलाफ चल रही थी ना, मान लीजिए इसके खिलाफ केस चलने शुरू हो गए थे कि ये अपने पैसे को पे नहीं कर पा रही है, अपने ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पा रही है, इसके खिलाफ केस चलने शुरू हो गए थे, तो यहां पर ये बैंकिंग कंपनी हाई कोर्ट में गई अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट कि अपने डेब्ट को पे नहीं कर पा रही है. एंड फर्दर यहां पर हाई कोर्ट ने इसको एक स्टे दे दिया. हाई कोर्ट ने क्या दे दिया, एक स्टे दे दिया. स्टे ने क्या कहा बेसिकली कि जो भी यहां पे इसके केस चल रहे थे वो ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड नहीं चलेंगे, वो ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम ऑन होल्ड रहेंगे, उनके ऊपर एक स्टे रहेगा. तो ऐसा यहां पर स्टे में कहा गया. एंड ये जो मॉनिटोरियम पीरियड हो सकता है ये 6 महीने का हो सकता है, लेकिन ये मॉनिटोरियम पीरियड तभी अलाउ किया जाएगा, ये मॉनिटोरियम पीरियड सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउ किया जाएगा अगर ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड, अगर मॉनिटोरियम पीरियड के बाद, नॉट ड्यूरिंग द मॉनिटोरियम पीरियड बट मॉनिटोरियम पीरियड के बाद, अगर बैंकिंग कंपनी यहां पर अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए यहां पर सही हो सकती है, तभी यहां पर मॉनिटोरियम अप्लाई किया जाएगा.
तभी ये मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा, अदरवाइज मॉरेटोरियम पीरियड नहीं दिया जाएगा। यानी कि मेन फंडा क्या है, मेन फंडा ये है कि बैंकिंग कंपनी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि आप यहां पर डेप्ट अपने पे नहीं कर पाओगे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साथ के साथ यहां पर एक स्कीम दी थी रिलेटेड टू मॉरेटोरियम। वो स्कीम में क्या कहा गया था कि अगर आप ऐसे ऐसी चीजें कर लोगे तो डेफिनेटली उसके बाद आप अपने पैसों को पे कर पाओगे। तो यहां पर बैंकिंग कंपनी चलेगी हाई कोर्ट के पास कि अभी हमारे जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, हमारे ऊपर जो भी केस चल रहे हैं उनको अभी रोक लगा दो। तो यहां पर उसके केस में हाई कोर्ट यहां पर ऑर्डर स्टे का दे सकती है कि 6 महीने के लिए मैं आपको टाइम दे देती हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि यहां पर आप 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना जो भी कामकाज करने वाले हो कामकाज कर लो। लेकिन हाई कोर्ट ये टाइम पीरियड तभी देगा अगर हाई कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाइड है कि मॉरेटोरियम के साथ यहां पर मॉरेटोरियम के बाद यहां पर जो बैंकिंग कंपनी है वो अपने डेब्ट्स को पे ऑफ कर पाए। ओके, एंड फर्दर ऑन पासिंग ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड द कोर्ट में अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर टू टेक कस्टडी ऑफ एंड द कंट्रोल ऑफ द एसेट्स और बुक्स एटसेट्रा ऑफ द बैंकिंग कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो जैसे ही मॉरेटोरियम ऑर्डर पास किया जाएगा, हाई कोर्ट यहां पर एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो कि यहां पर जो भी एसेट्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उनकी यहां पर कस्टडी की जाएगी उस स्पेशल ऑफिसर के द्वारा, ताकि वो डिपॉजिटर का पैसा लेकर ऐसा ना हो कि बैंकिंग कंपनी रफू चक्कर हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। That is related to it. And further, if the Reserve Bank India is satisfied that the affairs of the banking company under the moratorium as above are being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositor, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे मान लीजिए मॉरेटोरियम यहां पर दे दिया, यहां पर एक स्टे पीरियड दे दिया, ठीक है, लेकिन मॉरेटोरियम के दौरान भी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जांचा परखा एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा कि अभी भी इसके कामकाज वैसे ही चल रहे हैं जो कि डिपॉजिटर्स के लिए जो कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसके केस में यहां पर इट मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो उसके केस में यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यहां पर हाई कोर्ट में अप्लाई कर देंगे फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड उसके बाद जो यहां पर हाई कोर्ट है वो मॉरेटोरियम पीरियड को फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो मॉरेटोरियम पीरियड है डेट इज एक्सटेंडेबल मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 महीने का टाइम हर किसी को दे दिया जाएगा। हो सकता है किसी को 15 दिन का टाइम दिया जाए, हो सकता है किसी को 30 दिन का टाइम दिया जाए, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंडेबल है कि उसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम भी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जांचा परखा, उसको लगा कि अभी भी कामकाज तो वैसे चल रहा है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसके केस में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के पास अप्लाई किया, जिसके बाद अब हाई कोर्ट फर्दर मॉरेटोरियम को आगे एक्सटेंड नहीं करेगा एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर जो लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर दिया कि इस बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। नाउ इट इज रिलेटेड टू वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट, सेक्शन 38 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। So the High Court shall order the winding up of the banking company in circumstances mentioned in 38। ठीक है, तो अगर सेक्शन 38 के अंदर जो सर्कमस्टांसेस है उनमें मेंशन कर दिया गया तो उसके केस में जो कंपनी है उसको वाइंड अप किया जा सकता है। इन द केस जो बैंकिंग कंपनी है अगर वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है, बैंकिंग कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पा रही है, तो उसके केस में एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप हैज बीन मेड बाय द रिजर्व बैंक, या फिर अगर एक एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, एक एप्लीकेशन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है एज पर द सेक्शन 37, एज पर द सेक्शन 37 अगर एक एप्लीकेशन किसने दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, तो उसके केस में भी वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बाउंड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर द सेक्शन 38 इफ डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब दो चीजें हैं, एक तो हमने सेक्शन 37 पढ़ा, सेक्शन 37 पढ़ा जहां पर हमने मॉरेटोरियम स्कीम के बारे में पढ़ा एंड ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम भी यहां पर जो बैंक था वो सही से नहीं चल रहा था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर हाई कोर्ट के पास अप्लाई कर दिया कि इसको वाइंड अप कर दिया जाए। वो सेक्शन 37 के अंदर है। सेक्शन 38 के अंदर क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर इंस्पेक्शन करवाई थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंस्पेक्शन की रिपोर्ट गई, तो उसके बाद यहां पर जैसे 35 के अंदर यहां पर इंस्पेक्शन करवाई थी ना, 35 के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 35 के अंदर कि अगर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो खुद से या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर यहां पर इंस्पेक्शन करेगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करवाई थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर कहा कि आप जाकर हाई कोर्ट में अप्लाई करो वाइंड अप के लिए, तो वो किस सेक्शन में किया जाएगा, सेक्शन 38 में किया जाएगा, तो वो सेक्शन 38 में किया जाएगा। ओके, ऑन कंसीडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सैंक्शन और स्क्रूटनी मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्क्रूटनी की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन की थी एंड उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, इस बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो वहां पर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जा करके हाई कोर्ट में अप्लाई करो कि बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप किया जाए। ओके,
देन इट इज रिलेटेड टू कि ऐसी कोई भी डायरेक्शन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई भी डायरेक्शन देगा तो एक रिप्रेजेंटेशन का टाइम देगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलनी चाहिए फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो इट इज ओपन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अप्लाई टू द वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इन सर्टेन अदर केसेस। तो अगर कुछ एक और भी चीज होती हैं तो वहां पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनी इन द हाई कोर्ट रिलेटेड, कि अगर जहां पर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, जो मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट थी अंडर द सेक्शन 11, उनको फुलफिल नहीं किया गया। अगर यहां पर बैंक जो है वो अपना बिजनेस यहां पर इंडिया में करना बंद कर चुका है, यानी कि सेक्शन 22 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर लाइसेंसिंग दी थी, किसको, बैंक्स को लाइसेंसिंग दी थी, लेकिन यहां पर वो अपना बिजनेस कर ही नहीं रहा है, तो वहां पर अगर किसी वजह से बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको यहां पर वाइंड अप किया जाना चाहिए। फर्दर प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स, तो यहां पर सेक्शन 34 के अंडर, सेक्शन 35(4) के अंदर यहां पर अगर गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं किया जाता, या फिर सेक्शन 42 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो सीआरआर से रिलेटेड एक्ट है, अगर सीआरआर को मेंटेन नहीं किया जा रहा एंड फर्दर यहां पर एक इंपोजिशन की जा रही है, एज अ पेनल्टी पनिशमेंट दी गई है कि आप यहां पर फ्रेश डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड फर्दर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर भी वाइंडिंग अप के लिए इस बेस पर भी लगाया जा सकता है, इस बेस पर भी कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। फर्दर फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो अगर कोई और भी यहां पर आपके बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्शंस दी गई थी एंड फर्दर डिफरेंट कंप्लायंसेस थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके साथ बैंक जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा, एंड फर्दर जो स्पेसिफाइड पीरियड थे उनसे पीछे जाकर भी फिर से कंट्रावेंशन रोज चल रही है, फिर से दिक्कतें पेश कर रहा है, यानी कि बैंक को नोटिस निकाल दिया, बैंक ने भेज भी दिया, शोकोस भी भेज दिया, एंड बैंक को यहां पर एक चेतावनी भी दे दी गई कि ऐसी चीजें मत करो, फिर भी वो ऐसा करता जा रहा है, तो वहां पर भी यहां पर वाइंड अप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। Okay, in addition to the above, Reserve Bank of India may apply for winding up of the banking company if it is of the opinion that a compromise or arrangement sanctioned for a banking company cannot be worked satisfactorily with or without modification, यानी कि जहां पर जो बैंक था वो सही से कामकाज नहीं कर रहा था, एंड फर्दर उन्होंने यहां पर स्कीम बनाकर भी देख ली कि हम स्कीम बना लेंगे, इसको रिकंस्ट्रक्शन कर लेंगे या फिर अमलगमेट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने देखा ये फिर भी नहीं चलेगा, ये बैंक जो है वो फिर भी नहीं चल सकता, उसके केस में भी यहां पर एक वाइंडिंग अप के लिए अलाउ कर सकते हैं। द रिटर्न्स स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बैंक अंडर द एक्ट शो दैट इट कैन नॉट पे इट्स डेट, तो जहां पर जो रिटर्न्स दी गई हैं, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो शो करती हैं कि ये अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर सकते। द कंटिन्यूअस ऑफ द बैंकिंग कंपनी इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर, तो ऐसा भी लगता है कि अगर ये कंपनी चली तो ये यहां पर और ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर देगी अपने डिपॉजिटर्स के लिए, तो इन सभी केसेस में भी यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो वाइंड अप के लिए हाई कोर्ट के पास अप्लाई कर सकती है। तो एक सिंपल सी चीज याद रख लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है वाइंड अप, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाइंड अप करना है, वाइंड अप किसके थ्रू होगा, वाइंड अप हाई कोर्ट के थ्रू होगा, वाइंड अप किसके थ्रू होगा, हाई कोर्ट के थ्रू ही होगा। ओके, एंड इट इज रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनी शैल बी डीम्ड टू पे अनएबल टू पे इट्स डिपॉजिट, किस बैंकिंग कंपनी को माना जाएगा कि वो अपने डिपॉजिट्स को पे नहीं कर पा रही है, अगर कोई यहां पर लॉफुल डिमांड रेज की गई, अगर बैंकिंग कंपनी के किसी भी ऑफिसेज के ऊपर, किसी भी ब्रांचेस के ऊपर लॉफुल डिमांड रेज की गई, एंड जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है, ब्रांच है, कोई एजेंसी है, उस केस में अगर वहां प्लेसेस के ऊपर उस बैंकिंग कंपनी की ब्रांच थी एंड वो 2 दिन के अंदर अंदर जो अपने ऊपर लॉफुल डिमांड थी उसको पे नहीं कर पाई, या फिर उन एरियाज में जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस नहीं है, कोई इनके सब ऑफिस नहीं है, कोई इनकी एजेंसी नहीं है, उस केस में 5 बैंकिंग डेज के अंदर अंदर, 5 बैंकिंग डेज के अंदर अंदर अगर वो यहां पर पैसा पे ना कर पाई बैंक, तो उसके केस में बैंकिंग कंपनी को माना जाता है कि डेट इट इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट्स, इट इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट्स। इज इट क्लियर? एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज के रिलेटेड रिटर्न में सर्टिफिकेशन देता है कि जो बैंकिंग कंपनी है वो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही है। देन इट इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब एक बार वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल पड़ेगा तो उसके बाद यहां पर एक ऑफिशियल लिक्विडेटर भी तो लगाना पड़ेगा, जो यहां पर जो लिक्विडेटेड एसेट्स है उनका ध्यान रखेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब एक कंपनी अगर चल रही है, एक सिंपल कंपनी की या कोई बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी चल रही है तो कई लोगों से इन्होंने पैसा लिया हुआ है, जैसे कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे पैसा लिया हुआ है, जो क्रेडिटर्स हैं उनसे पैसा लिया हुआ है, जिनसे इन्होंने लोन ले रखे हैं उनसे पैसा लिया हुआ है, ठीक है, एंड फर्दर
कई लोगों को इन्होंने पैसा देना होता है, अब जो क्रेडिटर्स एंड डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा देना है, एंड फर्दर जो लोन्स हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, उनसे इनको पैसा आएगा, यानी कि इनके एसेट्स हैं, ये इनकी क्या है, लायबिलिटीज हैं जिनको इन्होंने पैसा देना है, एंड ये इनके एसेट्स हैं जहां से इनको पैसा मिल सकता है। अब लिक्विडेटर का काम क्या होता है, वो इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैचअप करता है ताकि बेस्ट तरीके से जो एसेट्स है उनकी रिकवरी हो सके एंड बेस्ट तरीके से जो लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ किया जा सके, ठीक है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द लिक्विडेटर। तो यहां पर जब स्कीम बनी गई है, जब यहां पर आपने सोच ही लिया कि वाइंड अप कर ही देना है, तो वहां पर एक लिक्विडेटर को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, जो कोई और बैंक भी हो सकता है। इसके लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा एंड फर्दर उनको यहां पर एज ऑफिशियल लिक्विडेटर लगाया जा सकता है। सो इट प्रोवाइड्स फॉर ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अटैच टू रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जिसे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के साथ अटैच कर दिया जाएगा ताकि वाइंड अप के प्रोसेस को यहां पर स्टार्ट किया जा सके। फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिक्विडेटर बन सकता है, दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 39 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट में अप्लाई करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या किसी और बैंक को जैसे भी नोटिफाई किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पर उन्हें भी यहां पर एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। जो रिम्यूनरेशन होगी रिलेटेड टू द लिक्विडेटर एंड जो भी कॉस्ट होगी, अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर होंगे, वो किन के द्वारा पे किए जाएंगे, वो यहां पर जो बैंकिंग कंपनी है जिसको वाइंड अप किया जा रहा है उसके द्वारा ही बॉन्ड किए जाएंगे। Then it is related to stay of proceedings. It is related to stay of proceedings. High Court shall make an order staying the proceedings of winding up where it is satisfied that the arrangement has been made where the banking company can pay the depositors in full as their claims accrue. तो अगर यहाँ पर किसी भी समय पर हाई कोर्ट को ये लगता है कि यहां पर जिस बैंकिंग कंपनी को हम वाइड अप करने की बात कर रहे हैं उसके पास एप्रोप्रिएट यहां पर एसेट्स हैं, तो वो यहां पर ऑर्डर पास कर सकती है, वहां पर स्टे लगा सकती है, किसके ऊपर, वाइंडिंग अप के ऊपर, उस बैंकिंग कंपनी की वाइंडिंग अप के ऊपर स्टे लग सकता है। देन इट इज रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल पेमेंट। अगर यहां पर वाइंड अप कर दिया गया बैंकिंग कंपनी को, उसका ऑर्डर दे दिया गया, तो विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, तो वाइंडिंग अप का जब ऑर्डर आया उसके बाद 3 महीने के अंदर जो भी प्रेफरेंशियल पेमेंट सी वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के द्वारा कर दी जाएंगी, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहां पर एक राइट मिलता है कि इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो उनका जो पैसा उनको मिलना था वो सबसे पहले उनको पे किया जाएगा। तो अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो वाइंडिंग अप की डेट से 3 महीने के अंदर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर था वो पैसा पे कर देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड उसके बाद उन सभी डिपॉजिट अकाउंट्स में, उन सभी सेविंग बैंक अकाउंट्स में जिनमें जो बैलेंसेस का जो लायबिलिटी थी वो बैंक की 250 रुपए तक की थी, एंड उसके बाद वो डिपॉजिटर्स जिनकी जो लायबिलिटी थी वो यहां पर 250 रुपीज तक की थी दूसरे अकाउंट्स में, सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट में यानी कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स में जहां पर बैलेंस की लायबिलिटी 250 रुपए तक की थी वो पे की जाएगी। उसके बाद वो दूसरे अकाउंट जो सेविंग बैंक अकाउंट नहीं भी है एंड वहां पर लेकिन जो लायबिलिटी है वो 250 रुपीज तक की है, वो यहां पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी सभी पेमेंट्स की जाएंगी, यानी कि उसके बाद जो बाकी का पैसा है, चाहे वो टर्म डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो किसी और तरह की लायबिलिटी है, जनरल क्रेडिटर्स हैं, फिर उनकी लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। इज इट क्लियर? The provision for preferential payment by liquidator will not apply to the depositors covered under the DIC-GC Act. तो DIC-GC में अगर इंश्योरेंस है, जैसे कि 5 लाख तक का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पर DIC-GC में कवर्ड है। जिस सेविंग फंड में जो बैलेंस है आपका 5 लाख तक का वो यहाँ पर DIC-GC में कवर्ड है। तो उसके केस में अगर आपका डिपॉजिट इंश्योर्ड है तो वहां पर प्रेफरेंशियल पेमेंट लागू नहीं होगी, प्रेफरेंशियल जो पेमेंट है वो लागू नहीं होगी। देन इट इज रिलेटेड टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी वाइंड अप तो अलाउड ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप यहाँ पर खुद ब खुद हाई कोर्ट के पास चले गए कि हमें वाइंड अप करना है, ऐसा नहीं होगा। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये जो बैंकिंग कंपनी अपने डेब्ट्स को पे ऑफ नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर तब तक जो कोई भी बैंक है वो यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर वो अपने डेब्ट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रही है तो उसके केस में यहाँ पर बैंक जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पर मॉनिटरिंग की स्कीम बताएगा या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम बताएगा कि वाइंड अप करना जरूरी है, सर्टिफिकेशन रिटर्न में देगा, तभी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। देन इट इज रिलेटेड टू पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस।
to penalties for offenses. A banking company has to abide by the requirements of the Reserve Bank of India and Banking Regulation Act. तो इतनी चीज तो आप समझ गए अभी तक कि बैंकिंग कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आरबीआई एक्ट को मानना एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मानना, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकता है, वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई है। एंड फर्दर जो कोई भी कानून है जो यहां पर बैंक के ऊपर लागू होते हैं आपको उनको मानना पड़ेगा, जो कोई भी स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस हैं, स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, उनको मानना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो उसके केस में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टीज आरबीआई एक्ट के अंडर क्या है, तो चैप्टर 5 जो है आरबीआई एक्ट का वो पेनल्टीज के साथ डील करता है, यानी कि अगर कोई वायलेशन की जाती है एक्ट की तो क्या क्या पेनल्टी लगेंगी। तो अगर बैंकिंग कंपनी को कोई एप्लीकेशन देनी थी, कोई रिटर्न जमा करनी थी, कोई स्टेटमेंट जमा करनी थी, एंड फर्दर ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी रिटर्न्स, ऐसी स्टेटमेंट्स को डिपॉजिट करते हुए जानबूझ करके एक फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है, विलफुली किसी चीज को ओमिट किया गया है, छोड़ा गया है एंड यहां पर फॉल्सिफाई किया गया स्टेटमेंट को, तो उसके केस में 3 साल तक की सजा हो सकती है। जो कंसर्न्ड पर्सन है उसको 3 साल तक की सजा एंड साथ में फाइन जो है वो यहां पर हो सकता है। एंड फर्दर अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन के अंडर आपको कहा गया कि आपने बुक्स को प्रोड्यूस करना है, अकाउंट्स को, स्टेटमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है एंड फर्दर आप वहां पर जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था उसमें डॉक्यूमेंट्स को, बुक्स को, अकाउंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपके ऊपर 2000 रुपए का पनिशमेंट लगेगी, 2000 रुपए का आपको यहां पर फाइन लगेगा फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस, हर एक ऑफेंस के लिए 2000 रुपए का फाइन लगेगा। एंड फर्दर अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो पर डे 100 रुपीज के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगती रहेगी। देन इट इज रिलेटेड टू द पेनल्टीज अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अवमानना करेंगे तब भी आपके ऊपर यहां पर क्या लगेगा, तब भी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जैसे कि सेम चीज यहां पर भी लागू होती है कि अगर आपने यहां पर जानबूझ करके किसी स्टेटमेंट को गलत बताया, कोई रिटर्न में गलत चीज यहां पर बता दी, किसी चीज को छोड़ दिया जानबूझ के, तो उसके केस में आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है एंड साथ में आपको फाइन भी लग सकता है। इसी तरह से अगर कोई बुक प्रोड्यूस करनी थी, आपने वो बुक प्रोड्यूस नहीं करी, तो वहां पर आपको 2000 रुपए तक का फाइन भी पे करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली हर एक दिन का आपको 100 रुपीज के हिसाब से फाइन पे करना पड़ेगा जब तक आप ऐसे ऑफेंसेस करते रहेंगे। एंड फर्दर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट अगेंस्ट एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एक्सेप्टेंस। तो अगर आपके ऊपर ये आपको रूल दिया गया, आपको ये डायरेक्ट किया गया कि आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया तो जो फाइन अमाउंट लगेगा दैट वुड बी ट्वाइस द अमाउंट एक्सेप्टेड। तो अगर आपने 50,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए, तो अगर आपने 50,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए तो उसके केस में आपको जो फाइन है वो 1 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। जो फाइन आपको वो 1 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। ओके, देन इट इज रिलेटेड विद हर एक ऑफिसर, हर एक डायरेक्टर, अगर यहां पर वो भी पनिशेबल साथ में रहेगा अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसकी नॉलेज में ये चीज बिल्कुल भी नहीं थी एंड उसकी नॉलेज के बिना ही इस चीज को किया गया है एंड फर्दर उसने सभी तौर तरीके अपनाए थे कि ऐसी चीजों को यहां पर ना किया जाए। अगर फिर भी ऐसा हो गया फिर उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाया तो उसके केस में उसके ऊपर फाइन जो है वो उसे पे करना पड़ेगा। ओके, देन एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर प्रोविजंस। सो कोई भी रूल, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर दी गई है एंड फर्दर कोई भी कंडीशन इंपोज की गई है एंड फर्दर अगर आप उसके ऑपोजिट जाते हैं तो वहां पर आपके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लग सकता है या फिर जितना अमाउंट उस ट्रांजैक्शन में, उस कॉन्ट्रावेंशन में इन्वॉल्व था उसका ट्वाइस ऑफ द अमाउंट तक का आपके ऊपर फाइन लग सकता है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल चीज लेकर चलते हैं, अगर आप फॉल्सिफाई करते हैं तो उसके केस में आपको 3 साल की सजा है एंड अगर आप यहां पर किसी बुक को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उसके केस में 2000 रुपए फाइन है एंड फर्दर उसके बाद 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन है, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन है। एंड फर्दर अगर आपको डिपॉजिट लेने से मना किया गया था, फिर भी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, तो जितना डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया उसका मल्टीप्लाई बाय 2 उतना फाइन आपको पे करना पड़ेगा, तो उसका ट्वाइस ऑफ द अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई डायरेक्टर, कोई एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर इसमें यहां पर मिलाप, उसका भी डाला गया है कि वो पर्सन यहां पर इन्वॉल्व था, उसको भी फाइन पे करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस वो इस चीज को प्रूव कर पाए कि उसने यहां पर उसकी किसी भी तरह की भागीदारी उसके बीच में नहीं है एंड फर्दर उसने सभी तरीके की ड्यू डिलिजेंस को अपनाया है, सभी तरीकों को अपनाया है कि इस चीज को ना किया जा सके, अंजाम दिया जा सके। फिर भी अगर वैसी चीज हो गई है तो उसके केस में उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर फाइन लगेगा।
फर्दर अगर किसी एक्ट की अगर और कोई प्रोविजन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर और कोई प्रोविजन थी, अगर आपने उनको तोड़ा है, अगर कोई डायरेक्शंस दी गई थी, कोई ऑर्डर दिया गया था, कोई यहां पर आपको कंडीशन इंपोज की गई थी, तो उसके केस में आपके ऊपर फाइन लगेगा विच इज अप टू ₹50,000 या फिर जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व था उसका ट्वाइस ऑफ द अमाउंट का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। ओके जैसे मान लीजिए जो यहां पर गलती की गई उसमें अमाउंट इन्वॉल्व था 10,000 रुपीज का, तो उसके केस में फाइन कितना पे करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ द अमाउंट यानी कि 20,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप ऐसी जो कंट्रावेंशंस है उनको कंटिन्यूड रखते हैं तो उसके केस में हर एक दिन का 2500 के हिसाब से फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा। तो उसके केस में हर दिन का 2500 के हिसाब से जो फाइन है वो यहां पर इंपोज किया जाएगा। फर्दर इन केस ऑफ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, इन केस ऑफ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सेम चीज यहां पर जो हमने ऊपर पढ़ी कि अगर यहां पर कंपनीज ने यहां पर ऑफेंस किया है तो हर एक पर्सन जो भी यहां पर कंपनी में इंडल्ज था, जो कि वहां पर उस पर्टिकुलर चीज का इंचार्ज था या फर्दर ऑफिसर था दैट वाज बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो भी यहां पर पनिशेबल रहेगा अनटिल और अनलेस वो इस चीज को प्रूव कर देता है कि द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज में नहीं था कि ये ऑफेंस किया गया एंड फर्दर उसने सभी तौर तरीके अपनाए थे कि इस तरह का ऑफेंस ना हो, फिर भी अगर वैसे चीज हो गई तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, अदरवाइज उसके ऊपर भी लायबिलिटी रहेगी, उसकी भी पेनल्टी रहेगी। देन अंडर सेक्शन 47 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कोई भी ऑफेंसेस होते हैं, जो कोई भी ऑफेंसेस होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, वो किसकी कोर्ट में जाएंगे, कम से कम वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे, जो जुडिशियल फर्स्ट क्लास हो या फिर कोई कोर्ट सुपीरियर उससे ऊपर की कोई कोर्ट हो, वहां पर यहां क्या किया जाएगा, वहां पर केस जाएगा। ओके on a complaint by an officer of the Reserve Bank and in some cases by the National Bank। तो यहां पर जब भी कोई केस फाइल किया गया है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ, किसी ऑफिसर के खिलाफ अंडर द कंट्रावेंशंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो सेक्शन 47 कहता है जो ऐसा केस फाइल किया जाएगा वो यहां पर जो कोई भी ऐसा ऑफेंस होंगे वो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, ओनली बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या तो उनकी सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा होगी या फिर जुडिशियल फर्स्ट क्लास के द्वारा होगी। ओके या फिर कोई सुपीरियर कोर्ट है, उनसे ऊपर कोई कोर्ट है, वहां पर इन केसेस की सुनवाई होगी। ओके and further under section 47(a) it is said the Reserve Bank is empowered to impose a penalty for default or contravention। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये एम्पावरमेंट है, ये पावर है कि वो यहां पर कोई पेनल्टी लगा सकते हैं। एंड फर्दर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कोई पेनल्टी लगाता है, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, तो उसके केस में कोई भी यहां पर कंप्लेंट फाइल नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में इन रिस्पेक्ट कि उन्होंने ऐसी कॉन्ट्रावेंशन नहीं की है, ऐसा डिफॉल्ट नहीं किया है। इज इट क्लियर? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। तो अगर यहां पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई पेनल्टी लगा दी तो वो यहां पर किसी भी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। तो दैट इज रिलेटेड टू टुडे वीडियो। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना, आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.